نحمده ونصلي على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم۔ مجلس کے صدر محترم، جامعۃ الاسلامیہ مرکز المکاتب کے بانی و محرک جناب مولانا و مفتی نور الحق سلیمی ندوی صاحب، دیگر معزز ترین علماء کرام، گاؤں کے باشندگان، میرے دینی بھائیوں، عزیز اور پیارے بچوں، میں عزیزی مولانا و مفتی نور الحق سلیمی ندوی صاحب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نیک کام کی سنگ بنیاد کے موقع سے ذرہ نوازی کا ثبوت دیا اور آپ سے روبرو ہونے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولانا موصوف نے ادارے کے سنگ بنیاد کے تعلق سے جن اغراض و مقاصد کی توضیح و تشریح کی ہے یہاں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے نیک مقاصد کو قبول فرمائے اور مدرسے کی یہ سنگ بنیاد اس علاقے کی دینی، علمی، روحانی پاکیزگی تحریک کا مرکز بنے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس نوعیت کے ادارے کھولنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ یہی علماء ہمارے اگر یہ حیدرآباد چلے جائیں، یہ گجرات چلے جائیں، مسجدوں کے امام بن جائیں، مدرسوں کے معلم بن جائیں، تو عزت بھی، توقیر بھی، تحائف بھی، لیکن اس علاقے میں ادارے کھولنے والوں کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو ادارے کے تعلق سے اپنی ذاتی منفعت کا سودا کرتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ ملت کے خاطر اپنی جان کو بھلاتے ہیں۔ اور مجھے امید قوی ہے کہ اس وقت اس بے رحمی میں جہاں تعلیم انسانیت سازی کا نہیں بلکہ تعلیم مادہ پرستی کا، عزت کا، شہرت کا، دولت کا، حصول مال و زر کا ذریعہ بن گیا ہو، ایسے وقت میں صالح تعلیمی نظام کو لے کر اٹھنا ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ اور مجھے عزیز موصوف سے یہ توقع ہی نہیں، اعتماد بھی ہے کہ جس ادارے نے ان کی علمی پرورش کی ہے اس نے ضرور اس کے ذہن و فکر کو پاکیزگی عطا کی ہوگی، چونکہ یہ وارث ہیں علامہ شبلی رحمۃ اللہ، ندوی کے طلبہ وارث ہیں حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، اور آپ میں سے بیشتر لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت میں تعلیمی نظام حکومت کے ذمہ تھا۔ انگریزوں کے ہاتھ میں چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے مدارس اور مکاتب کی تنخواہ برٹش دیتے تھے، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی دیتی تھی۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی معلوم ہو کہ مدرسوں کے جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تغلق کے زمانے میں دلی میں 1000 مدرسے اور ان مدرسوں کے فارغین صرف امام اور مدرس، معلم اور مؤذن نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہاں کے فارغین سپہ سالار بھی ہوتے تھے، منصف بھی ہوتے تھے، امین بھی ہوتے تھے، حکمت اور جراحی کا بھی کام کرتے تھے۔ جب 1857 میں تحریک آزادی ناکام ہوئی تو انگریزوں کو مسلمانوں پر غصہ آیا۔ اس وقت کے مفتی اور قاضی تک کی تنخواہ انگریزوں کی، اور اس وقت غصہ آیا تو انہوں نے 1 لخت تمام تر مکاتب اور مدارس کی جو سرپرستی رکھی تھی اس کو قلم کر دیا۔ یہ وقت بڑا نازک تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے دیکھا
ये कई साल गुजरे थे 1857 में, 1863 में। 4-5 साल के अंदर हम महसूस किया कि दुनिया तो हमारे हाथ से रुखसत हो गई है। बहादुर शाह जफर जो आखिरी चश्म चिराग था मुगलिया सल्तनत का, रंगून में कैद कर दिया गया। अब दुनिया निकल गई है। अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम न दें तो इनके सीनों से ईमान भी निकल जाए। चुनांचे उन्होंने उस बड़े अजीब व गरीब हालात में मदरसा कायम किया ताकि उसकी दीनी और उसकी ईमानी किफायत हो सके। वक्त नहीं गुजरा था कि सर सैयद अली रहमान जो सब मुंसिफ थे अंग्रेज के दौर में, बड़ी मुलाजिमत हासिल, उन्होंने जब नवाबों के बच्चों को अंग्रेजों के पांव में मालिश करते हुए देखा तो उनको रोना आया कि ये नवाब जिनकी अपनी शान शौकत थी, जिसके दरबार पे अंग्रेज खड़ा रहता था, आज इनके बच्चे इनके पांव में मालिश कर रहे हैं। तो हमको उठना चाहिए। और एक बेचैनी सी सर सैयद अली रहमान की तबीयत में, और उसने कहा अंग्रेजों का मुकाबला आपको हम तो तफन से नहीं कर सकते, इसका मुकाबला करना है तो हमको तालीमी तहरीक उठनी पड़ेगी। और अंग्रेजों का जो गलबा हुआ है हम पर, वो फौजी ताकत से नहीं हुआ। कितना बड़ा है इंग्लैंड, बिहार से थोड़ा सा बड़ा है ना, 5-6 करोड़ की आबादी, और पूरी दुनिया में उसकी सल्तनत थी। उसके अंदर में क्या थी, उसने इल्म, साइंस और तकनीक में अपने आप को बहुत ऊपर कर लिया था। सर सैयद अली रहमान ने कहा कि मुगल की नाकामी की वजह इल्म और तकनीक है, मैं अपने बच्चों के दरमियान में साइंटिफिक सोच पैदा करूंगा। चुनांचे उन्होंने नारा दिया 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया उन्होंने, कि मौलाना नानोतवी का मदरसा रहमतुल्लाह अलैह मौलिम को पैदा कर सकता है, दीन मुअज्जिन पैदा कर सकता है, इमाम पैदा कर सकता है, लेकिन कारदार हयात में साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। चुनांचे उन्होंने एक दावा पेश किया कि मैं एक ऐसा तालीमी निजाम लेके आ रहा हूं कि मेरे बच्चे के दाएं हाथ में साइंस, बाएं हाथ में कुरान, या बाएं हाथ में साइंस, दाएं हाथ में कुरान होगा, और पेशानी पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ताज। दावा बड़ा अच्छा था। उस वक्त के बड़े बड़े लोगों ने सर सैयद की तहरीक का साथ दिया। अल्लामा शिबली भी साथ हुआ। अल्लामा शिबली ने देखा कि सर सैयद जिस दावा को लेकर उठे हैं, नवाबों रईसों के बच्चे अभी जाएंगे अलीगढ़, तो बड़े बड़े कमरे हैं एक लोगों के। उस वक्त आम लोगों के बच्चे नहीं जा पाते, बड़े लोगों के बच्चे तो ऐस पसंद एक्का पर में उसको घोड़ा गाड़ी पर जाना, बड़े कमरे, उनके लिए नौकर का सामान, नौकर के रहने का इंतजाम सब कुछ था। तो अल्लामा शिबली ने देखा कि मुट्ठी भर लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ पाए, और जो दावा सर सैयद ने किया है, ये दावा सच भी साबित हो जरूरी नहीं है। उन्होंने बड़ा अच्छा पाकीज़ा जुमला वो किया कि मैं एक ऐसे इदारे को कायम करूंगा जो कदीम, सालेह और जदीद नाफे उलूम का मरकज और महवर होगा। और चुनांचे 1894 में नदुतुल उलमा का तहत हुआ। और आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा, अगर किसी गैर मुस्लिम से अगर संग बुनियाद रखी जाए तो हमारे दीनी हल्के के लोग उसको तौहीन समझेंगे, लेकिन मौलाना गवाह होंगे कि उसके संग बुनियाद में एक अंग्रेज भी शामिल था। मौलाना सच्चे यानी वो क्या थी, वो हिकमत थी अल्लामा शिबली की कि इल्म किसी से भी चाहो हासिल करो। आज जो हम इस मुल्क में बसते हैं, आज हम बहुत जलील और रुस्वा हैं। क्यों? आप और हम ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, कम हैं, हम अक़लियत में हैं, हम माइनॉरिटी में हैं। तारीख के तमाम तर औराक अभी ताजा हैं। क्या अकबर के जमाने में मेजोरिटी में थे आप? हुमायूं के जमाने में, तुगलक तैमूर के जमाने में मेजोरिटी में थे? मेजोरिटी में मुसलमान कभी नहीं रहा, इसमें माइनॉरिटी में हमेशा रहा। कोयला मेजोरिटी में है, कीमत है क्या? लेकिन चांदी और सोना माइनॉरिटी में है, कीमत है। तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी नहीं, ज्यादा नहीं थी, मुसलमानों की इस्तेदाद बहुत अच्छी थी। मुसलमान तालीमी एतबार से अच्छा था, अखलाकी एतबार से अच्छा था,
कारोबार में दयानतदार था, गैर मुस्लिम भी ये कहता था मुल्ला जी की दुकान से सामान लाना उसके तराजू में पासंग नहीं। ये थे हमारे अखलाक। और जब हमारा अखलाक हमसे गुजर गया, हमारी दयानत हमसे रुखसत हो गई, हमने इल्मी मैदान में काम करना छोड़ दिया, तो दुनिया में हमें गुलाम बना दिया। आप बेशतर यहाँ में साहब खबर और अहले इल्म को देख रहा हूँ, ताजा आलिमों को देख रहा हूँ। आपके पास इल्म अभी जो मौलाना आए हैं, मैंने अक्सर देखा है फारिगीन की जमात जब आती है तो बेचैन होते हैं वो, क्योंकि 10-15 साल एक इदारे में परवरिश होती है उनकी। वो देखते हैं कि भाई कुरान ये कहता है, सूरह नूर और सूरह अल अहज़ाब में कुरान में मुआशरती मामलात के बारे में तज़किरा हुआ, पर्दा क्या है, महरम क्या है, गैर महरम क्या है, वो वहां से पढ़ के आता है तो बेचैन होता। लेकिन कुछ दिन ही रहता है कि फिर बारात में औरत और मर्द के अख्तलाफ में वो शामिल हो जाता है। ऐसी बारात में भी दूल्हे के पास खड़ा हो जाता है, जहां दोशीज़ाएं आकर दूल्हे को शरबत पिलाती है। वो होता क्या है कि हर के दरकान नमक रफ्त नमक सूद। ईमानदारी से मुझे बताइए कि पर्दे की जो आयात कुरान में आई है, क्या सुरजापुरी इलाके में पर्दे की वो आयात राइज है? हत्ता के शादी ब्याह में तो छोड़िए, मैयत के मौके से भी नहीं। और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि कोई इसको अल्लाह के कानून और अल्लाह के रसूल की तालीमात को तोड़ने वाला अमल समझकर टोकने पर भी तैयार नहीं। आप देखेंगे यहूदी इस वक्त गलबा में है, छोटी सी कौम, तकरीबन उसकी 1 करोड़ की आबादी, और आज दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। 6 अरब में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, और बल्कि अभी तो 7 अरब हो जाएगी आबादी। और उसमें आप देखेंगे कि वो आज ईसाइयों पर, मुसलमानों पर, बल्कि पूरी दुनिया पर गलबा हासिल किए हुए। उसकी वजह क्या है? ये अल्लाह की सुन्नत रही, जैसा कि हम लोग मुक्तदी की हैसियत से समझने की कोशिश करते हैं। जिस जमाने में जिस चीज की कदर मंजिलत रही, अल्लाह ने अपने नबी को उसी मामलात के औसाफ आला तरीन से मुज़य्यन करके भेजा। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लेहन की कदर थी, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को लेहन अता फरमाई कि परिंदे रुक जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का चलन था, अल्लाह ने अपने नबी को मौजज़ा दिया तो मुर्दा को छुए तो जिंदा हो जाए, कोढ़ी को छुए तो सेहतमंद हो जाए, अंधा को छुए तो आंखें आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में साहिरी का चलन था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को मौजज़ा दिया कि तमाम साहिरों की साहिरी पर गलबा हासिल कर लिया। अल्लाह ने ऐसे फसी और बलीग कलाम से अल्लाह के रसूल को नवाजा कि सबकी फसाहत और बलागत मान पड़ गई। ये जमाना बिलाशुबा साइंस और टेक्नोलॉजी का है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर में गए तो उस वक्त जो सरो सामान थे, जो घोड़ा था, जो बर्छी थी, जो नीजा था, सबको लेकर पहले आप जंग में खड़े कर दिए सिपाही। तब सजदे में गिरे कि खुदावंदा ये मुट्ठी भर जमात अगर आज फातह न हुई तो फिर कयामत तक इस रूए जमीन पर तेरा नाम लेवा